Students, now we are discussing today the human brain, human nervous system. We have already discussed reflex action. It is the only functions of the spinal cord. Obviously not, but since we know that we are thinking beings, spinal cord is made up of nerves which supply information to think about. Thinking involves more complex mechanism and neutral connection. Thinking is the most complex mechanisms which is done in our brain. They receives information about what we think, analyze it, and as per information they work and apply the action. Now human nervous system, it is a voluntary and involuntary. In both the sense, human nervous systems are inbuilt our bodies. Human nervous system are of two types: main central nervous system and peripheral nervous system. So central nervous system is just called CNS, and the peripheral nervous system is called PNS. Now uh, central nervous system consists of brain and spinal cord. The brain, which is located in cranium, in a skull, and the spinal cord is protected within the vertebral column. Now, peripheral nervous system, there are 12 pairs of nerves in as cranial nerves and 31 pairs of nerves found in a spinal nerves. So there are 33 spines in our vertebral column, and between the gap of each two spine, in consecutive two spines, there is a nerve arises on the both side, left and right side of the body. Now, some common functions of CNS, spinal cord, and brain. So CNS, central nervous system, receive information from external environment and other parts of the body and bring about integration. All the information are integrated and make decisions. In the spinal cord, we already discussed reflex action and reflex arc. We have already discussed. Brain, main coordinating center in the body. हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है, उसका सबका वो कोऑर्डिनेशन करता है और उसके अकॉर्डेंस डिसीजंस लिया जाता है. allows us to think and take this action based on the thinking. Peripheral nervous system, it communicates between central nervous system and the other parts of the body. हमारे हाथ, हमारे पैर और बॉडी के हर कोई ऑर्गन्स जो नेक से नीचे है वो सब ये पीएनएस से जुड़े हुए हैं. पीएनएस से उसका जो पूरे बॉडी में उसकी नर्व्स फैलती है और सीधी स्पाइनल नर्व तक जाती है. Involuntary nervous system is formed by sympathetic and parasympathetic nervous system, which is connected with the internal involuntary organs. Involuntary the actions in our body which are not in the control of our wish, that is called involuntary action. And involuntary action is done by involuntary nervous system. As for example, heartbeat, peristaltic movement of alimentary canal, pupil, the movement of pupil, broad and narrow, the lungs, they expand and then contract. All of them are the involuntary action.
Now we are discussing human brain. Page number 118, we have a diagram. This diagram should be drawn in your notebook and labeled it. It is the figure number 7.3 on the page number 118 of your textbook. This is the diagram. तो डायग्राम ड्रॉ करना है, याद रखना है, उसके लेबलिंग याद रखना है, और हर एक जो पार्ट है, हर एक जो एरिया है, वो सब के फंक्शंस भी याद रखना है. नाउ यहाँ पे मैंने तो एक चार्ट ड्रॉ किया है ह्यूमन ब्रेन के साथ कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से जो एरियाज है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. Forebrain are also have a 3 areas: cerebrum, thalamus and hypothalamus. And and cerebrum जो एक्शन cerebrum के जो एक्शंस है वो यहाँ पे है: थॉट, स्पीच, मेमोरी, टच, टेम्परेचर्स, विजन, हियरिंग, सेंसेशंस. Whereas hind brain have also 3 areas: cerebellum, pons and medulla. So cerebellum maintains body balance, pons breathing regulation, and medulla heartbeat, BP, peristaltic movement of alimentary canal. ये medulla का वर्क है, फंक्शन है. Now there are 3 main areas: forebrain, midbrain and hindbrain. So first we discuss forebrain. It is the most complex and largest part of the brain. So here is the forebrain. This is the part of the forebrain. तो forebrain है एक्चुअली 2 हेमिस्फीयर्स है. 2 हेमिस्फीयर है. हर एक हेमिस्फीयर को दरेक हेमिस्फीयर जो both the hemisphere are called cerebrums. Most complex and largest part, which is the main thinking part of the brain. और ये कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कन्वोल्यूटेड पार्ट है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है अंदर उसकी. इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू रिसेप्टर्स. तो हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स है, नोज, ईयर्स, आई, स्किन एंड टंग, वहाँ पे जो भी सेंसेस यहाँ तक आती है, इट रिसीव सेंसरी इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन. इट हैज़ अ सेपरेट एरियाज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. तो सेवरल एरियाज डूइंग हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन. There are separate areas of association where sensory information is interpreted by putting it together with information from the other receptors as well as with information already stored in the brain. तो ऐसी कई सारी ऐसी सेंसेशंस है, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग सेंसेस से एक साथ आती है, लेकिन यहाँ पे जो ये एरिया में आके उसका जो उसका कंट्रोल होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसके जो रिएक्शन आती है, ऐसे कमांड्स है, वो डिसाइड किए जाते हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्गन को कन्वे भी किए जाते हैं. तो क्योंकि हर एक रिसेप्टर्स है वो एक साथ काम करते हैं. कई सारी हमको पता चलता है, हम खाना खाते हैं तो टंग भी काम करती है, हमारा नोज भी काम करता है, हाथ भी काम करता है, और स्किन भी काम करती है. उस सब में जो सेंसेशन होता है, वो सब का सेंसेशन एक साथ ब्रेन में जाता है, वहाँ पे एनालाइज होता है, और उसी हिसाब से सलाइवा सिक्रेशन होता है. तो ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, इसका एक साथ होता है. फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन ए डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड द सिचुएशन. तो ये सिचुएशन को हैंडल करने का काम इस तरह से होता है. तो इंफॉर्मेशन आती है, वहाँ पे उसको एनालाइज होता है और एक डिसीजन में क्रिएट होता है,
और बाद में कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसी हिसाब से मोटर नर्व्स है वो इफेक्टर ऑर्गन तक अपना मैसेज कन्वे कर देती है और इफेक्टर ऑर्गन उसी तरह से उसका रिस्पॉन्ड करता है. इट हैज अ मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट. तो यहाँ पे मोटर एरिया जो मूवमेंट को कंट्रोल करने की जो वॉलेंटरी मसल्स है उसको कंट्रोल करने के लिए मोटर एरियाज होते हैं. इट हैज़ अ सेपरेट सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर. हमको भूख लगती है तो हमको पता चलता है, तो ऐसे भी कुछ सेंटर्स है वो भी यहाँ पे है. नाउ सेकंड वन इज मिड ब्रेन. तो कॉर्पोरा quadrigemina is a part of a midbrain. Its centers for visual and auditory reflexes are located here. विजुअल एंड ऑडिटरी. कभी हम जाते पीछे से कोई हमारा नाम लेके हमको बुलाता है तो तुरंत हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो विजुअली रिफ्लेक्शन होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्शन होता है. अगर सामने से कोई व्हीकल हम चलते जाते हैं और सामने से कोई व्हीकल आता है और हम साइड पे हट जाते हैं तो वो विजुअल रिस्पॉन्स है, वो रिफ्लेक्स है. तो तुरंत ही हमारी बॉडी को बिल्कुल हार्म हुए बिना हम उसको बाजू में कर लेते हैं. तो ये एक रिफ्लेक्सेस है. हिंड ब्रेन. pons, medulla and cerebellum are the parts of hidden brain. Cerebellum. It maintains a body balance, posture, while movement like dancing, walking, running, riding, two-wheelers. तो जो ये सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी का जो बॉडी बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं. चाहे हम कुछ भी एक्ट करते हो तो हमारा बॉडी का बैलेंस और पोस्चर वो मेंटेन रखता है. जो डांसिंग है, वॉकिंग है, हम कुछ खेल खेलते हैं तो अपने आप उसका बैलेंस हो जाता है. लेकिन ये बैलेंस बनाने का जो काम होता है वो सेरिबेलम का होता है. पॉन्स. इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है वो पॉन्स से होता है. नाउ मेड्यूला कई तरह के काम करती है. मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, बीपी, पेरिस्टलिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. ये वो कंट्रोल करती है जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस है. एंड इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेस ऑल्सो. कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, वॉमिटिंग, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. ये सब काम ये मेडुला ऑब्लोंगाटा की जो कुछ पॉइंट्स है वो रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने वाले पॉइंट्स है जो मेडुला में है. तो ये सब मेडुला का काम है. तो इस तरह से ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है और ऑल द 3 पार्ट्स ये डिस्कस्ड ऑलरेडी. नाउ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी एक तरह से प्रोटेक्टेड है. वो कैसे प्रोटेक्टेड है? तो हम जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है. लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्ट हुए होते हैं. कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? तो जब ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन एंड इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर द वेराइटी ऑफ एक्टिविटी. जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये मेन ऑर्गन में ही होता है, इसीलिए उसका प्रोटेक्शन तो बहुत जरूरी है. सो इट नीड्स टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम. जो हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल के अंदर भी कई सारे स्पेसिस होती है. तो ब्रेन जिस स्पेस में एक बलून की तरह अंदर फिट है वो जो स्पेस है उसको क्रेनियम बोला जाता है और उसमें वो प्रोटेक्ट होता है. सिर्फ क्रेनियम में वो बलून की तरह होता है ऐसा ही नहीं है, उसके आसपास 2 और लेयर भी होते हैं. Inside this bony box, brain is covered by meninges of 3 layers, one over another. एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे 3 लेयर्स होता है जो जिसको बोला जाता है मेनिंजेस. और ये मेनिंजेस भी 2 मेनिंजेस के बीच में भी फ्लूइड होता है जिसको बोला जाता है cerebrospinal fluid. There is a fluid between the layers of meninges which protects brain against mechanical shock by absorbing it. तो मैकेनिकल शॉक जो छोटे मोटे जो हमको धक्के लगते हैं वो सर को, तो उसको कुछ हार्म नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो मेनिंजेस है, उसमें जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पे ये टेक्स्ट बुक में तो ये नाम नहीं है, तो ये फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड.
वो भरा रहता है और वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. नाउ स्पाइनल कॉर्ड. Spinal cord is protected in a hard skeletal structure called vertebral column or a backbone composed of 33 spines one over the other. ये स्पाइन्स भी, हर एक स्पाइन के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पे जो कार्टिलेज होती है उसकी एक कुशन जैसा होता है, कार्टिलेज का कुशन जैसा होता है, जिसके ऊपर ये जो स्पाइन्स है वो हमको मूवमेंट देती है. तो ये सब स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर से वो ऑल द 33 स्पाइन से वो पास होती है, और वो भी बहुत नाजुक होती है. उसमें से कई सारे स्पाइन जो नर्व्स होती है वो ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हर एक ऑर्गन को वो कनेक्ट करती है. नाउ हाउ मसल एक्ट्स. तो मसल की एक्शन कैसे होती है, चलो हमको एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं. हमारे बॉडी के अंदर हाथ है, वो हॉट ऑब्जेक्ट को छू गया तो हम हाथ तुरंत वापस लेते हैं. वो हमने रिफ्लेक्स एक्शन में देखा है, रिफ्लेक्स आर्क में हमने डिस्कस किया है. लेकिन वो मसल कैसे काम करते हैं जिससे हाथ पीछे खींच लिया जाता है, तो वो देखते हैं. The collected information from receptor of sensory organs from the atmosphere surrounding our body sends it to brain via spinal cord. तो जो इंफॉर्मेशन रिसेप्टर से आई है उसको ब्रेन तक पहुंचाई जाती है. ये सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन की बात नहीं है, बॉडी के हर एक एक्टिविटी की बात है. ब्रेन प्रोसेसेस और एनालाइजेस this information, makes decision based on the incoming information and conveys this decision to effector organs. तो ब्रेन से या तो स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व थ्रू इफेक्टर ऑर्गन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है. लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है मस्कुलर सेल से. When this nerve impulses reaches the muscle fiber moves. This movement starts from cellular level. Muscle cell moves by changing their shape so that they shorten. तो मसल सेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोला जाता है. तो वो प्रोटीन है, वो ऐसा होता है जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका शेप चेंज करता है. और वो जब मसल को इसीलिए मसल का शेप चेंज हो जाता है, नई एक पोजीशन में आ जाता है. मसल सेल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन that changes their shape as well as their arrangement in accordance to the information received as an impulse. तो इम्पल्स जिस तरह से आती है उसी अकॉर्डेंस में उसकी मूवमेंट होती है. In this way, muscle tissues bring about the movement. The whole muscle cell, and then after this muscle cell pass on the information to the other cell. और इसी तरह से एक पूरा मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है और मूवमेंट बनती है. और एक साथ कई सारे फाइबर्स ऐसा काम करते हैं तो ये मूवमेंट बन जाती है. तो होमवर्क में जो इंटेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर, तो ये 5 क्वेश्चन है पेज नंबर 119. तो 119 5 क्वेश्चन है, वो इंटेक्स क्वेश्चन है, वो एज अ होमवर्क करना है. यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है ब्रेन का मेन जो शॉर्ट नोट आई है ब्रेन की, वो याद रखनी है, वो आपको लर्न करनी है. ओके, थैंक यू.